محترم ناظرین السلام علیکم۔ روشن ٹی خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ خبرنامے کا آغاز کرتے ہیں حدیث مبارکہ سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ عز و جل میری امت میں سے 10 طرح کے افراد پر قیامت کے دن اظہار ناراضگی فرمائے گا اور ان کو جہنم میں ڈال دینے کا حکم فرمائے گا، اور ان کے جو چہرے ہوں گے بغیر گوشت کے ہوں گے۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کون سے 10 لوگ ہوں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 1 بوڑھا زانی، 2 گمراہ پیشوا، شراب کا عادی، والدین کا نافرمان، چغلی کرنے والا، چغل خور، جھوٹا گواہ، جھوٹی گواہی دینے والا، زکوٰۃ ادا نہ کرنے والا، سود خور، ظالم اور نمازوں کو چھوڑ دینے والا۔ آغاز کرنے سے پہلے نظر ڈالتے ہیں آج کے اہم سرخیوں پر۔ ضلع کامریڈی جکل حلقہ اسمبلی میں بڑے پیمانے پر منعقدہ ترقیاتی کاموں میں ریاستی وزیر بلدی نظم KTR نے کی شرکت۔ متحدہ اضلاع میں پرامن طور پر آغاز عمل میں لائے گئے انٹرمیڈیٹ امتحانات میں 1 منٹ کی تاخیر پر طلباء کو امتحانی مراکز میں داخلے کی اجازت نہیں دی گئی۔ نظام آباد کے مختلف سینٹر کا کلکٹر راجیو گاندھی ہنمنتو نے لیا جائزہ۔ یوم پیدائش کے موقع پر ریاستی وزیر ویملا پرشانت ریڈی نے سنسنی خیز فیصلہ لیتے ہوئے اب سے ان کے پاس آنے والے افراد شال و پھولوں کا گلدستہ نہ لا کر غریب طلباء کے لیے کارآمد اشیاء کو لانے کی تاکید۔ مرکز کی BJP حکومت ہر محاذ پر ناکام، وہ خواتین تحفظات بل کی یقینی طور پر منظوری عمل میں لائی جائے۔ دہلی کے خواتین گروپ سے راؤنڈ ٹیبل اجلاس سے MLC کے کویتا کا خطاب۔ CM KCR و آرمور MLA جیون ریڈی کی جانب سے شروع کردہ ترقیاتی فلاحی اسکیمات سے متاثر ہونے والوں نے BRS پارٹی میں شمولیت اختیار کی۔ حیدرآباد کے منسٹر کوارٹر میں MLA جیون ریڈی کی موجودگی میں چکلی دیہات سے تعلق رکھنے والے کانگریس قائدین نے BRS پارٹی میں کی شمولیت اختیار۔ MLC کے کویتا کے ساتھ دہلی جانے والے BRS قائدین کو محتاط رہنے کا دہلی میڈیا سے MP DRP نے دیا انتباہ۔ بارہ فیصد تحفظات و مسلم مسائل کو ریاستی حکومت کی جانب سے نظر انداز کیا جا رہا۔ اقلیتی طبقے کے ساتھ کھلواڑ، شہر کے لمرا بینکٹ ہال میں جاری JC راؤنڈ ٹیبل سے معززین کا خطاب۔ اب بڑھتے خبروں کی تفصیلی جانب۔ ڈویژن نمبر 32 میں 20 لاکھ کی لاگت سے BT اور CC روڈ کے تعمیری کاموں کا افتتاح۔ مہمان خصوصی کی حیثیت سے میئر و ڈپٹی میئر کی شرکت۔ انچارج کارپوریٹر ریاض احمد کی جانب سے کیا گیا شاندار استقبال۔ شہر کے ڈویژن نمبر 32 میں مدرسہ جامع جوار الفاطمہ کے مقابل ایک BT و CC روڈ کے تعمیری کاموں کا افتتاح میئر نیتو کرن، ڈپٹی میئر ادریس خان، صدر ضلع مجلس شکیل احمد فاضل کے ہاتھوں عمل میں آیا۔ اس موقع پر انچارج کارپوریٹر ریاض احمد نے تمامی مہمانوں کا استقبال کرتے ہوئے ان کو تہنیت پیش کی۔ اس موقع پر شکیل احمد فاضل نے میڈیا کے نمائندوں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ گزشتہ 8 سالوں سے اس حلقے کی نمائندگی جناب ریاض احمد صاحب کرتے ہوئے آ رہے ہیں اور ان کی قیادت میں اس حلقے میں کافی ترقیاتی کام پائے تکمیل تک پہنچے ہیں اور مزید کام کے لیے وہ کوشش کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ عوام نے مجلس کو جس اعتماد سے کامیاب کرتے ہوئے بلدیے میں ہمارے نمائندوں کو بھیجا اور ہمیں عوامی خدمت کا موقع دیا، جس کو ہم پورا کرنے کی کوشش کریں گے اور مزید فنڈز کے ذریعے شہر کو اور بھی
ترقی یافتہ بنائیں گے۔ اس موقع پر مہمان خصوصی کی حیثیت سے ساتھی کارپوریٹر محمد نصیر، شیخ سلیم، سرفراز خان، عبدالعلی، محمد مستحسن، نعیم انجینئر کے علاوہ حلقے کے ذمہ دار وہ نوجوان موجود تھے۔ آج ڈویژن نمبر 32 میں پٹن پرگتی کے تحت 20 لاکھ روپے کا کاموں کا اناگریشن ہوا، جس میں مہمان خصوصی کے طور پر نظام آباد کی میئر نیتو کرن صاحبہ، ڈپٹی میئر عزیز خان صاحب اور تمام ہی کارپوریٹر اور محلے کے تمام لوگ نے حصہ لیا۔ کوئی یہ خوشائن بات ہے، ڈویژن جو پرانا 27 تھا جس کی نمائندگی ریاض کنٹینیو کرتے آ رہے ہیں، اس کے لیے ہم دوبارہ ریاض کو جتانے پر عوام کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ جو بھی کام ابھی جو بچے ہوا ہے وہ کام بھی بہت جلد نپٹائیں گے انشاءاللہ آنے والے دنوں میں، اور 1 کروڑ کا کام بھی آنے والا ہے۔ اس کا تمام ہی ڈویژن کا احاطہ کیا جائے گا۔ یہ جو 20 لاکھ ہے، اس میں ایک CC روڈ اور ایک BT روڈ کی شکل میں کام ہوگا، اور انشاءاللہ یہ رمضان سے پہلے کام پائے تکمیل کو پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ اور پیشگی میں تمام ہی اہلیان نظام آباد مسلمانوں کو رمضان کی مبارکباد۔ رمضان کے تعلق سے بھی ہم لوگ مساجد کے اطراف محرم اندازی وغیرہ بہت سارے کام کی ایک میٹنگ لی، انشاءاللہ وہ بھی کام جلد سے جلد جنگی خطوط پہ ہو رہا ہے۔ یہ سب چیزوں کو ملا کے انشاءاللہ ہم آپ سے خصوصاً MIM پارٹی آپ سے جو وعدے لیے تھے الیکشن میں، انشاءاللہ پورا کرتے ہوئے آگے بڑھیں۔ انچارج کارپوریٹر سرفراز محمد خان کی قیادت میں حلقے 59 ترقی کی راہ پر گامزن۔ 20 لاکھ کی لاگت سے BT روڈ کی تعمیری کاموں کا میئر و ڈپٹی میئر کے ہاتھوں افتتاح۔ آج شہر کے حلقے 59 میں مقامی انچارج کارپوریٹر سرفراز محمد خان کی قیادت میں 20 لاکھ لاگت سے ایک CC اور BT روڈ کے تعمیری کاموں کا افتتاح۔ میئر نیتو کرن، ڈپٹی میئر ادریس خان، شہری صدر و بلدی فلور لیڈر شکیل احمد فاضل، وہ سینئر قائد مجلس و سابقہ کارپوریٹر رفعت محمد خان کے ہاتھوں عمل میں آئے۔ اس موقع پر تمامی مہمانوں کا انچارج کارپوریٹر سرفراز محمد خان نے شاندار استقبال کرتے ہوئے ان کی شال پوشی گل پوشی عمل میں لائی، اور کہا کہ گزشتہ 3 سال سے ڈویژن نمبر 59 میں بڑے پیمانے پر ترقیاتی کام پائے تکمیل تک طے پائے ہیں، اور آج 20 لاکھ کی لاگت سے نیشنل ہائی اسکول کے مقابل ایک BT و CC روڈ کے تعمیری کاموں کا افتتاح عمل میں آیا۔ جلد سے جلد دوسرے کاموں کو بھی پورا کرنے کے لیے وہ مزید کوشش کریں گے، اور ڈویژن نمبر 54 کی صفائی کے لیے 1 کروڑ روپے کی منظوری ملنے کا انہوں نے اظہار کرتے ہوئے کہا کہ جلد سے جلد اس کام کا بھی آغاز عمل میں آئے گا۔ اس موقع پر ان کے ہمراہ ساتھی کارپوریٹر عبدالغفور مقیم، محمد نصیر، شیخ سلیم، عبدالعلی باغبان، محمد مستحسن کے علاوہ حلقے کے ذمہ دار ڈاکٹر رضی شتاری، سید منور پاشا، شیخ فرید، فیاض صاحب، سینئر سٹیزن و دیگر موجود تھے۔ 59 میں BT روڈ کا اناگریشن کیا جا رہا ہے، اور مہمان خصوصی نظام آباد کارپوریشن کے میئر صاحبہ، ڈپٹی میئر ادریس خان، ہمارے MIM کے صدر شکیل صاحب، اور ساتھی کارپوریٹرز اور محلے کے نوجوان اور بزرگوں۔ یہاں پر 3 سال کا عرصہ ہو چکا ہے، تقریباً 2 کروڑ کے قریب کام ہو چکا ہے، اور یہاں کے کارپوریشن کے میئر صاحبہ اور ہمارے مجلس اتحاد المسلمین کے صدر بیرسٹر اسد الدین صاحب کی ہدایت پر یہاں پر تقریباً مائنارٹی ایریا میں کام لگایا گیا، اور D54 جو کنال اسٹام واٹر میں جو تبدیل ہو رہی ہے وہ 1 کروڑ نیئر 1.5 کروڑ کا کام ہے۔ 12% تحفظات و مسلم مسائل کو ریاستی حکومت کی جانب سے نظر انداز کیا جا رہا۔ اقلیتی طبقے کے ساتھ کھلواڑ۔ شہر کے لمرا بینکویٹ ہال میں جاری JAC راؤنڈ ٹیبل سے معززین کا خطاب۔ آج شہر کے لمرا بینکویٹ ہال بودھن روڈ پر جوائنٹ ایکشن کمیٹی کی جانب سے راؤنڈ ٹیبل کانفرنس منعقد ہوئی، جس میں شہر کے معزز شخصیات نے شرکت کرتے ہوئے اقلیتوں کے خلاف ناانصافی و 12% تحفظات کے اوپر اپنے تبادلہ خیال پیش کیا، اور حکومت کی جانب سے مسلمانوں کو نظر انداز کیے جانے پر برہمی کا اظہار کیا، اور اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے میڈیا کے ذریعے حکومت سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا کہ آنے والے انتخابات میں مسلمان صرف اسی پارٹی کو ووٹ دے گا جو مسلمانوں کی تحفظات و مسلم مسائل پر بات کرے گا۔ اس موقع پر مہمان خصوصی کی حیثیت سے عبدالعزیز اسٹیٹ پریزیڈنٹ MPJ کے علاوہ جناب عبدالشکور صاحب، سینئر سٹیزن صدر، سینئر صحافی نعیم قمر، CPI قائد سدھاکر، شیخ مجاہد IUML،
गोवर्धन CPM, अब्दुल खादर साजिद MBT, ज़हीरुद्दीन जावेद MBT ने शिरकत करते हुए अपने ख्यालात जाहिर किए। इस कॉन्फ्रेंस की क़यादत WPI सदर रियाज खान पटेल, मोहम्मद अनवर खान, सीनियर सहाफ़ी व MPJ खैर, मोहम्मद ज़हीरुद्दीन व शेख हुसैन ने अंजाम दी। ఈ దేశంలో జనాభా ప్రాతిపదికన రిజర్వేషన్లు ఉండాలని చెప్పేసి ప్రధానంగా ఈ దేశ మూలవాసులందరూ డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నారు. ఆ మేరకు బీసీ, ఎస్సీ, ఎస్టీ, మైనార్టీలకు రిజర్వేషన్లు అందించాలని చెప్పేసి ప్రధానంగా మెజార్టీ ఈ దేశవాసులు కోరుతా ఉన్నారు. అందులో భాగంగా ముఖ్యంగా తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఆర్థికంగా అనేక ఇబ్బందులు పడుతూ సామాజికంగా వివక్షకు గురవుతున్నటువంటి ముస్లిం మైనార్టీలు 12% రిజర్వేషన్ ఇస్తానని చెప్పేసి ఎలక్షన్ల టైంలో ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు ప్రకటించారు. ఆ హామీని వెంటనే నిలబెట్టుకోవాలని చెప్పేసి ఇక్కడ నిజామాబాద్ నగరంలో ముస్లిం మైనార్టీ సంఘాలు ఏర్పాటు చేసిన రౌండ్ టేబుల్ సమావేశంలో వక్తలందరూ కూడా ముక్తకంఠంతో డిమాండ్ చేయడం జరిగింది. ఈ సందర్భంగా కేంద్రంలో ఉన్నటువంటి మోడీ ప్రభుత్వం కూడా ఏదైతే ఈ రిజర్వేషన్లు ఎత్తేసే కుట్ర చేస్తూ ఉన్నదో ఈ కుట్రల్ని మానుకోవాలని చెప్పేసి మేము ప్రధానంగా డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాం. జనాభా ప్రాతిపదికన రిజర్వేషన్లు కల్పించాలని చెప్పేసి డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాం. అదేవిధంగా ఈ రాష్ట్రంలో, ఈ దేశంలో ముస్లిం మైనార్టీలు అనేక రకాలుగా వివక్షకు గురవుతా ఉన్నారు. వాళ్ళు సామాజికంగా, ఆర్థికంగా, విద్యాపరంగా, రాజకీయంగా అనేక రకాలుగా ఇబ్బందులు పడతా ఉన్నారు. కాబట్టి వాళ్ళ జనాభా ప్రాతిపదికన 12% రిజర్వేషన్ ఏదైతే ఉందో అది కనీసం న్యాయమైంది, ధర్మమైంది. కాబట్టి వాళ్ళు ఏదైతే కేసీఆర్ గారు హామీ ఇచ్చారో ఆ హామీని నెరవేర్చుకోవాలని చెప్పేసి ఈ ఎన్నికల సమయంలో దీనిపైన స్పష్టమైన కార్యాచరణ ప్రకటించాలని చెప్పేసి ప్రధానంగా మేము డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాం. ఓట్ల కోసం ప్రజల్ని మభ్యపెట్టడం మానుకోవాలని చెప్పేసి ఇప్పటికైనా ఇచ్చిన హామీలను నెరవేర్చాలని మేము డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నాం. मरकज की बीजेपी हुकूमत हर महाज पर नाकाम होने का MLC व भारत जागृति सदर कविता ने किया इजहार। वो खवातीन तहफ़्फ़ुज़ात बिल की मंजूरी अमल में लाने तक जद्दोजहद करने की वजाहत। मरकज की बीजेपी हुकूमत हर महाज पर नाकाम होने का मुत्तहदा ज़िला निज़ामाबाद MLC के कविता ने इजहार करते हुए खवातीन तहफ़्फ़ुज़ात बिल की मंजूरी अमल में लाने तक जद्दोजहद करने की वजाहत की। इसी तरह से MLC के कविता की क़यादत में बरोज़ 4 जुम्मे के दोपहर के 3 बजे दिल्ली के ले मेरिडियन होटल में अपोजिशन जमातों खवातीन ग्रुप के नुमाइंदों के साथ राउंड टेबल इजलास मुनाक़िद करेंगे, जिसमें खवातीन तहफ़्फ़ुज़ात बिल के मामले पर तबादला ख्याल किया जाएगा। इस मौके पर दिल्ली में इन्होंने मीडिया से खिताब करते हुए कहा कि दस्तूर में खवातीन को मसावी हुकूक लेकिन इन पर अमलावरी न होने का इजहार किया। इन्होंने कहा कि खवातीन तहफ़्फ़ुज़ात बिल की मंजूरी के लिए कल जंतर मंतर पर धरना मुनाक़िद किया गया था। इसके सिलसिले के तौर पर आज राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें तमाम जमातों को मदऊ करते हुए पार्लियामेंट में किए जाने वाले तरीक़ेकार के तहत तबादला ख्याल करने का इजहार किया। विमेन रिजर्वेशन बिल एक पॉलिटिकल एम्पावरमेंट का ही तरीका नहीं है। एक बार सदन में या असेंबली में कोई महिला खड़े होकर बात करती है तो जनरली ज़्यादा तौर पे महिलाओं के मुद्दा बहुत ज़्यादा उठाती है, और इसके साथों साथ जो महिला संसद में या असेंबली में खड़े होकर बात करती है उनको देख के इतने लोग इंस्पायर हो जाते हैं कि हर एक क्षेत्र में महिलाएं आगे आने के लिए इंटरेस्ट दिखाती है। तीसरी मेरी बात, नॉट ओनली इन पॉलिटिक्स बट वुमेन एम्पावरमेंट शुड बी होलसम। इट कुड बी बिजनेस, इट कुड बी एजुकेशन, इट कुड बी एम्प्लॉयमेंट। सारे चीज़ों में बातें होने चाहिए। काफ़ी सारे ऐसे स्टेट्स हैं जिसने एम्प्लॉयमेंट में रिजर्वेशन दिए वुमेन्स को। लाइक फॉर एग्जांपल माय स्टेट गेव 33% रिजर्वेशन फॉर वुमेन इन पुलिस। देयर आर मेनी स्टेट्स हु गिव रिजर्वेशन फॉर वुमेन स्टूडेंट्स। देयर आर अ लॉट ऑफ स्टेट्स हु वर्क फॉर फी रिएम्बर्समेंट। देयर आर मेनी स्टेट्स हु एनकरेज वुमेन एंटरप्रेन्योर्स। दारुल नोमानिया वेलपुर मंडल का 25 साला कामयाब दस्तारबंदी उफाज इजलास। मदरसा इस्लामिया की अनथक मेहनतों की कदर करते हुए तुलबा उलमा व उफ़ाज़ से मोहब्बत करना हुज़ूर अलैहिस्सलाम का फरमान है। इन ख्यालात का इजहार नाज़िम जलसा मौलाना अब्दुल क़य्यूम शाह करते हुए तलक़ीन की कि कुरान मजीद से अपने ताल्लुक़ को मजबूत करना मौजूदा ज़माने में अज़द ज़रूरी है। इस मौके पर हाफ़िज़ लई खान सदर जमीयत ने कहा कि मदारिस में अपना माल व औलाद का लगाना सादतमंदी है, इसीलिए आप अतियात के ज़रिए भी मदारिस का ताउन करें चूँकि वो अच्छा माल होता है। इसी तरह ख़ानदान के जहन व
नाकितीन बच्चों को मदारिस में दाखिला दिलवाए ताकि बाद में उम्मत की रहनुमाई भी यही काबिल उलमा कर सके। मौलाना बशीर अहमद अशरफ उसामी ने अकाबरीन व इस्लाफ के वाक़या सुनाते हुए बताया कि अज़्म कुरान अपने दिलों में पैदा करे, चूँकि कुरान अल्लाह का कलाम और किताब है। इस कलाम को पढ़ने पढ़ाने वालों की नाकदरी से बचो, वरना हलाकत व बर्बादी का मुँह देखना पड़ेगा। मुफ्ती सईद अकबर इमाम व खतीब जामा मस्जिद ने अवाम उन्नास को खिताब करते हुए इस बात की तरगीब दी कि वो कुरान मजिद की निस्बत से मुनक़िद होने वाले हर जलसे और महफिल में अदब व एहतराम से बैठे और तवज्जो कराते हुए कहा कि ये कुरान हिदायत का एक अजीम नूर है, जिससे अपने दीगर मज़ाहिब वाले लोग भी इस्तिफादा और बरकत हासिल करते हैं। इस मौके पर नाज़िम मदरसा मौलाना साबिर मुफ्ताही ने बताया कि गुज़िश्ता 25 साल से ये मदरसा एक वादी गैर ज़ी-ज़रई यानी जंगल और इंतहाई खलील आबादी वाले इलाके वेलपुर मंडल में बेमिसाल कुर्बानियों से चलाए जा रहे हैं। इस पूरी मुद्दत में इदारा नौमानिया से 60 तलबा ने तकमील हिफ्ज़ किया, जो आज आपके सामने दस्तार फजीलत बांधे बैठे हैं। मेहमान खुसूसी मौलाना मोहम्मद इरशाद साहब अकाबी नक्शबंदी ने अपने तफसीली खिताब में मदरसा और तलबा सबको मुबारकबाद देते हुए कहा कि मदारिस जिस हाल में भी इनकी कदर करना उम्मत मुसलिमा के एक एक फर्द की जिम्मेदारी है। एक तालिब इल्म पर माहाना हजारों रुपये मदरसा खर्च करता है। मुकामी हर फर्द को आगे आकर एक एक तालिब इल्म के हाफिज बनाने की कफालत करना चाहिए, ताकि ये हाफिज कुरान हमारे लिए शिफात का जरिया और सबब बने। आखिर में सदर इजलास मौलाना सैयद समीउल्लाह सदर जमतुलमा ने मदारिस के हवाले से अपने कीमती बातें बताकर दुआ फरमाई। इजलास हज़ा में मौलाना अब्दुल क़य्यूम नूरी, मौलाना अजीमुद्दीन, मौलाना जमील के अलावा दीगर मुकामी व बैरूनी उलमा अफ़वाज और कसीर तादाद में मर्द व ख़वातीन शरीक रहे। बहैसियत मेहमान खुसूसी मौलाना क़ारी मोहम्मद अब्दुल्ला क़ासमी ने अपने मखसूस अंदाज में कुरान मजिद की तिलावत फरमाई। अहमद हुसैन सागर ने नाते नबी पेश की। तकरीबन रात 1 बजे इजलास का इख्तिताम अमल में आया। तमाम इब्नाए ख़दीम तलबा ने अपने असातिज़ा मौलाना साबिर मुफ्ताही और हाफिज अशरफ अली नोमानी का शुक्रिया अदा करते हुए शालपुशी के जरिए तहनीत भी पेश की। लोग आजकल मदारिस के सिलसिले में बड़े बदगुमान और बदजन होते जा रहे हैं और ये समझते हैं कि हम मदरसे वाले सिर्फ चंदा वसूल करते हैं और कुछ काम नहीं करते हैं, लेकिन आज आपकी आंखों के सामने ये 40 तलबा हाफिज कुरान नजर आ रहे हैं। मैं ऐसे लोगों से हर जगह पर ये कहा करता हूँ कि हरदम बरस रहे हैं अनवार मदरसों में, हरदम बरस रहे हैं अनवार मदरसों में, आकर तो देखिए ना एक बार मदरसों में। दूर से रहकर बदगुमान होने से कोई फायदा नहीं। आप आए मदरसे के अंदर चार दीवारी में और आकर के देखें कि हर पल मोहब्बतों का इजहार है मदरसों में, हर पल मोहब्बतों का इजहार है मदरसों में, गुफ्तार मदरसों में, किरदार मदरसों में। अल्हम्दुलिल्लाह इन तलबा की तालीम और तरबियत का हर मदरसे के अंदर यही निज़ाम और नज़्म होता है कि बच्चों को अच्छा से अच्छा खिलाया जाए, पहनाया जाए और उनकी देखभाल और देख रेख की जाए। अल्हम्दुलिल्लाह मदरसा दारुल उलूम नौमानिया भी गुज़िश्ता कई बरस से ये दीनी और मिली खिदमत अंजाम दे रहा है। अल्लाह ताला इस मदरसे की खिदमत को बेहद कबूल फरमाए। भैंसा मुस्तक़बिल में डॉक्टर कैलाश पाती और डॉक्टर सूर्यकांत रेड्डी ने डॉक्टर्स एसोसिएशन के ज़ेर एहतिमाम सहाफ़ियों को CPR की तरबियत दी। आज सुबह भैंसा डॉक्टर एसोसिएशन दफ्तर पर हल्के मधुल असम्बली के प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के तमाम नुमाइंदों के लिए CRP तरबियती प्रोग्राम का खास एहतमाम किया गया। इस प्रोग्राम में भैंसा तहसीलदार चंद्रशेखर रेड्डी ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की और भैंसा डॉक्टरों टीम को मुफ्त CPR ट्रेनिंग देने पर मुबारकबाद पेश की। सदर नशीन डॉक्टर दामोदर रेड्डी, कोऑर्डिनेटर डॉक्टर रामकृष्णा गौड़, प्रोग्राम चेयरमैन डॉक्टर मोतियम रेड्डी, सेक्रेटरी डॉक्टर कुमार यादव, मधुल हल्के के प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के नुमाइंदों में सीनियर सहाफ़ी अकबर खान, सैयद पाशा, सैयद जावेद, साहिल, लिसानुल हक ने भी प्रोग्राम में शिरकत की। रियासती वजीर बल्दी नज़्म नक्श KTR जिले कामारेड्डी का दौरा करने के तहत निज़ाम सागर ब्रिज का असम्बली स्पीकर पोचराम श्रीनिवास रेड्डी के हमरा रियासती वजीर KTR ने किया इफ्तिताह। रियासती वज़ीर बल्दी नज़्म नक्श KTR जिले कामारेड्डी का दौरा करने के पेश नज़र निज़ाम सागर ब्रिज का रियासती असम्बली स्पीकर पोचराम श्रीनिवास रेड्डी के हमरा रियासती वज़ीर KTR ने निज़ाम सागर पिटलम के शाहरा पर वाक़ मानचिरा नदी पर 25 करोड़ रुपए की लागत से तामीर करदा ब्रिज का इफ्तिताह अमल में लाया, जिससे मुकामी अवाम ने खुशी का इजहार किया। इस ब्रिज का आगाज़ अमल में लाने से तेलंगाना व कर्नाटक रियासत के दरमियान आमदरफ्त हमवार होगी। इसी तरह से जिले कामारेड्डी का दौरा करने वाले रियासती वज़ीर KTR का असम्बली स्पीकर पोचराम श्रीनिवास रेड्डी, रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी, जिले परिषद चेयरमैन शोभा राजू, रुकन रुकन असम्बली हनुमान शिंदे,
ضلعی ٹیار صدر آرمور MLA جیون ریڈی MP BB పాటిల్ MLC రాజేశ్వర్ के अलावा दीगा ने शानदार पैमाने पर इस्तकबाल किया। హైదరాబాద్ లో అప్పుడప్పుడే వస్తాడు హైదరాబాద్ కు, వచ్చినప్పుడు మాత్రం ఒకటే పని ఆయనకు, ఎన్నడూ కూడా ఒక్కసారి కూడా అన్నా నా కోసం గిది కావాలని అడగడు. నాకు వ్యక్తిగతంగా అన్నా ఈ పని కావాలి, ఆ పని కావాలి, ఈ ట్రాన్స్ఫర్ ఆ ట్రాన్స్ఫర్ ఆ పోస్టింగ్ ఈ పోస్టింగ్ ఎన్నడూ అడగడు. ఇప్పుడు అడిగినట్టే ఇప్పుడు లెక్క చదివిండు కదా, అన్నా నాకు కొన్ని రోడ్లు కావాలి, కొన్ని బ్రిడ్జిలు కావాలి, ఇంకొక లిఫ్ట్ ఇరిగేషన్ మిగిలింది గదొకటి కావాలి, ఇంకా కొన్ని పరిశ్రమలు కావాలి, 2 మున్సిపాలిటీలు కావాలి, బిచ్చుకుందా పిట్లమని అడిగిండు తప్ప ఎన్నడూ కూడా వేరేది అడగడు. నిజంగా మీ నియోజకవర్గ ప్రజలు అదృష్టవంతులు, జుక్కల్ నియోజకవర్గ ప్రజలు. ఇంత మంచి శాసనసభ్యుడు మీకుండడం మీ అదృష్టం అనే మాటని ఈ సందర్భంగా విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నా. మంచి నాయకుడు దొరికినప్పుడు గట్టిగా 10 కాలాల పాటు కాపాడుకునే బాధ్యత కూడా మీదే, బ్రహ్మాండమైన మెజారిటీతో. నేను ఇప్పుడే అడిగినది కూడా CM KCR के दौर इख्तिदार में रूबे अमल में लाई जाने वाली फलाही व तरक्याती स्कीमात से मुतासर होकर चिकली देहात से ताल्लुक़ रखने वाले कांग्रेस पार्टी के कायद शेख शब्बीर के अलावा माकरूल मंडल के नौजवान व नंदीपेट के कायदी ने ज़िले टीआर सदर आर्मूर MLA जीवन रेड्डी के हाथों TRS पार्टी में की शामिलियत इख्तियार। तेलंगाना हुकूमत के दौर इख्तिदार में रियासती वज़ीर-ए-आला कल्वकुंतला चंद्रशेखर राव की कामयाब तरीन क़ियादत में रूबे अमल में लाए जाने वाले मुख्तलिफ फलाही व तरक्याती स्कीमात से मुतासर होकर चिकली देहात से ताल्लुक़ रखने वाले कांग्रेस पार्टी कायद शेख शब्बीर के अलावा खादिन व माकलूर मंडल से वाबस्ता नौजवानों के अलावा नंदीपेट मंडल व मुख्तलिफ देहात से ताल्लुक़ रखने वाले खादिन शहर हैदराबाद के बंजारा हिल्स रोड नंबर 12 में वाक़े मिनिस्टर क्वार्टर में मुनाक़दा प्रोग्राम में ज़िले टीआर सदर आर्मूर रुकन असम्बली PUC कमेटी चेयरमैन जीवन रेड्डी के हाथों TRS पार्टी में शमूलियत इख्तियार करने वाले कायदीन को पार्टी का खंडवा पहनाकर पुरजोर इस्तकबाल किया और पार्टी में शमूलियत इख्तियार करने वाले पार्टी की जानिब से खुसूसी ओहदा देने का तयक़ुन दिया। इस प्रोग्राम में माकलूर मंडल यूथ नायब सदर D श्रीकांत, यूथ कायद शेर खान, शेख शब्बीर, अनीसुद्दीन नज़ीर, अंसर फारूक, सलमान, इरफान के अलावा कांग्रेस पार्टी से भी अलहदगी इख्तियार करने वाले कायदीन BRS पार्टी में शमूलियत इख्तियार करने वालों में शामिल है। इस मौके पर MLA जीवन रेड्डी ने खिताब करते हुए कहा कि साबिक़ हुकूमत के दौर इख्तिदार में न होने वाले कई तरक्याती काम TRS हुकूमत के बरसर इख्तिदार पर सिर्फ 8 साल के अरसे में कई तरक्याती कामों को कामयाबी के साथ रूबे अमल में लाते हुए बिला लिहाज मज़हब व मिलत तमाम तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम को मुख्तलिफ फलाही व तरक्याती स्कीमात के तहत फैज़याब किया जा रहा है, जिससे मकामी अवाम TRS हुकूमत के तई काफ़ी मुतमईन है। इसी तरह से रियासत तेलंगाना में जारी फलाही स्कीमात को मुल्क भर में कदर की निगाह से देखा जा रहा है और मुल्क के अवाम चीफ मिनिस्टर KCR को मुल्क की क़यादत करने की तौक़ी कर रहे हैं। इन्होंने कहा कि तेलंगाना की तमाम स्कीमात एक रोल मॉडल की तरह है। चीफ मिनिस्टर KCR गरीब व मुस्तहिक़ लड़कियों की शादी को बावक़ार अंदाज से अंजाम देने के लिए कल्याण लक्ष्मी शादी मुबारक स्कीम के तहत फी लड़की को 1,01,16 रुपये फ्राहम कर रहे हैं और इसके अलावा हुकूमत गरीब अवाम के मसाइल के यकसवी के लिए आशा पेंशन स्कीम के तहत बेसहारा ख़वातीन माज़ूर अफराद के अलावा मावरीन को हर माह पाबंदी के साथ वजीफ़ा दिया जा रहा है और लड़कियों की मियारी तालीम के लिए अक़ामती स्कूल व हॉस्टल कायम किए गए हैं और क़याम अमल में लाए गए आंगनवाड़ी मराकज़ के ज़रिए हामिला ख़वातीन को तग़ज़िया बख्श ग़िज़ा की फ़राहमी के साथ साथ सरकारी दवाखाने में ज़चगी के मौके पर KCR किट के साथ लड़के की पैदाइश पर 13,000 और लड़के की पैदाइश पर 12,000 रुपये फ्राहम कर रहे हैं। इसी तरह से रियासत तेलंगाना में ख़वातीन की हिफाजत के लिए शी टीम इनकी मदद कर रहे हैं और तेलंगाना हुकूमत के इक़्तिदार में रूबे अमल में लाए जाने वाली फलाही स्कीमात से तमाम तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम TRS हुकूमत की शहदाई होने का इजहार किया। BRS పార్టీలో చేరేందుకు వారికి హృదయపూర్వక స్వాగతం పలుకుతా ఉన్నాను. అదేవిధంగా దేవంగ ఆలూరు సంబంధించినటువంటి దేవంగ నాయకులు దాదాపు 200 కుటుంబాలు వారు కూడా ఈరోజు మన BRS పార్టీలో చేరినందుకు వారందరికీ కూడా BRSలోకి స్వాగతం పలుకుతా ఉన్నాను. जिले कामरेड्डी पिटला मंडल के मुकाम पर 15 तारीख को मुनक़िद होने वाले रियासती वज़ीर KTR के जलसे-आम के ताल्लुक़ से किए जा रहे इंतजामात का जुकल रुकन असम्बली हनुमान शिंदे ने लिया जायज़ा।
जिले कामरेड्डी पिटलम मंडल के मुकाम पर 15 तारीख को मुनक्किद होने वाले रियासती वज़ीर बल्दी नज़्म नक्श KTR के जलसे-आम के ताल्लुक से किए जा रहे इंतजामात का जुकल रुकन असम्बली हनुमान शिंदे ने जायजा लेते हुए कहा कि BRS हुकूमत के चीफ मिनिस्टर KCR की क़यादत में इक़्तिदार में आने के बाद रूबे अमल में लाए जाने वाले फलाई स्कीमात के तहत तमाम तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम को रास्त तौर पर फ़ायदा पहुँचाया जा रहा है। इन्होंने जिले कामरेड्डी पिटलम मंडल के मुकाम पर 15 तारीख को मुनक्किद होने वाले जलसे-आम में अवाम कसीर तादाद में शिरकत करते हुए कामयाब बनाने की ख्वाहिश की। भीमगढ़ शहर में सर्व समाज के ज़ेर निगरानी में कंटी वेलगू ओहदेदारान की शानदार पैमाने पर तहनीत अमल में लाई गई। रियासती हुकूमत की जानिब से बसारत की खराबी को दूर करने के अज़्म के साथ भीमगढ़ शहर में सर्व समाज के ज़ेर निगरानी में क़याम अमल में लाए गए कंटी वेलगू कैंप से रुजू होने वाले 90 वार्ड के अवाम को माहिर तजुर्बेकार तिबी अमला टेस्ट करते हुए मुफ्त अद्वियात और चश्मे की फ्राहमी अमल में लाई गई। इस मौके पर इन्होंने कहा कि गरीब अवाम खास तौर पर देहात के अवाम इलाज करवाने के काबिल नहीं है। इलाज को आसान बनाने के लिए CM KCR की जानिब से कंटी वेलगू प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाने का इजहार किया। बातज़ा शहर भीमगढ़ के सर्व समाज के ज़ेर निगरानी में कंटी वेलगू कैंप को रूबे अमल में लाने वाले ओहदेदारान को तहनीत अमल में लाई गई। मोरतार मंडल के मुकाम पर गुज़िश्ता 39 यौम से मुनक़दा कंटी वेलगू कैंप का आज अख्तिताम अमल में लाए जाने के बायस तिबी अमले को मुकामी सरपंच भोगा धरनी आनंद ने शानदार पैमाने पर तहनीत अमल में लाई। मोरतार मंडल के मुकाम पर गुज़िश्ता 39 यौम से मुनक़दा कंटी वेलगू कैंप से रुजू होने वालों को माहिर तजुर्बेकार डॉक्टर्स की जानिब से तशख़ीस करते हुए ज़रूरतमंद अफराद को मुफ्त अद्वियात चश्मे की फ्राहमी अमल में लाई गई। इस मौके पर इन्होंने कहा कि रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी की काविशों के सबब मंडल से मुताल्लिक़ा मौज़ूआत की तरक्की के लिए फंड्स की फिलफुल मंजूरी अमल में लाते हुए शुरू होने वाले तरक्याती कामों को फौरी तौर पर पाए तकमील पर पहुँचाया जा रहा है। इसी तरह से कंटी वेलगू प्रोग्राम भी अवाम के लिए काफ़ी कारआमद होने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में मुकामी सरपंच, नायब सरपंच गंगा रेड्डी, सेक्रेटरी रामाकृष्ण, मजलिस बल्दी मेम्बरान व दीगर ने शिरकत की। రెండవ విడత ప్రోగ్రాము ఈ రోజుకి మోటార్లో 37 రోజులు పూర్తయింది। ఈ 37 రోజుల్లో 5150 సుమారుగా 5150 మందికి కంటి పరీక్షలు చేయడం జరిగింది। ఇందులో వెంటనే కొంతమందికి వెంటనే కళ్ళద్దాలు పంపిణీ చేయడం జరిగింది। ఇంకా అవసరమైన వారికి అడ్రస్ తీసుకొని మన ఆశా వర్కర్స్ ద్వారా ఇంటింటికి పంపిణీ చేయడం జరుగుతుంది। ఇంకా అద్దాలు రావాల్సిన వారికి కూడా త్వరలో పంపిణీ చేయడం జరుగుతుంది। रियासत में आम अवाम से मुताल्लिक़ा मसाइल से वाक़िफ़ियत हासिल करने के लिए बोधन हल्के का दौरा करने वाले PCC सदर रेवंत रेड्डी के प्रोग्राम को कामयाब बनाने के लिए रियासती PCC खजांची साबिक़ा वज़ीर P सुदर्शन रेड्डी ने की ख्वाहिश। एयरपल्ली में क़याम अमल में लाए गए मीडिया इजलास से रियासती PCC खजांची व साबिक़ा वज़ीर P सुदर्शन रेड्डी ने खिताब करते हुए कहा कि रियासत में खासकर किसानों के मसाइल बहुत ज़्यादा है और हुकूमत के इक़्तिदार में किसानों के खर्चात की मुआफ़ी व धान की खरीदारी में लापरवाही करने से किसानों को कई मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इन्होंने कहा कि कालाश्रम प्रोजेक्ट जो कि काफ़ी रकम खर्च करने के बाद तामीर की गई है वो बेकार हो गई है। इसी तरह से हुकूमत गुज़िश्ता 8 सालों से आपाशी के शोबे को नज़रअंदाज कर रही है और हल्के में डबल बेडरूम मकानात व घर के लिए अराज़ी कहीं भी ना देने का इल्ज़ाम आयद किया और कहा कि कांग्रेस हुकूमत हाथ से हाथ जोड़ो प्रोग्राम के तहत रेवंत रेड्डी अवाम से मुताल्लिक़ा मसाइल से आगाही हासिल करने के लिए पैदल यात्रा मुनाक़िद करने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में मंडल पार्टी सदर P श्रीनिवास राव, खादिन G पोचैया, लिंगम, प्रवीण, M गंगाधर व दीगर ने शिरकत की। आ రోజుల్లో గవర్నమెంట్ అన్ని ఫ్యాక్టరీస్ పెట్టి ఉద్యోగాలు ఇచ్చి ప్రొడక్టివిటీ పెంచడానికి ప్రయత్నం చేస్తే అవన్నీ ఇప్పుడు బీజేపీ ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత మోడీ గారు ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఉండగా ఆ ఫ్యాక్టరీలని ప్రైవేటైజేషన్కి ఇచ్చి ఉదాహరణకు కోలే కానీ అదాని గారికి ఇచ్చారు పోర్ట్లన్నీ అదాని। मोरतार मंडल के मुकाम पर रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी के जन्मदिन तकरीब बरोज़ मंगल शानदार पैमाने पर मुनाक़िद की गई। MPP शिवालिंगू श्रीनिवास का इजहार। मोरतार मंडल के मुकाम पर अवाम के चहीते खाद रियासती वज़ीर इमारत और शौरा वेमुला प्रशांत रेड्डी की सालगिरह तकरीब का बरोज़ मंगल शानदार पैमाने पर इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें मोरतार, वेलपुर व निज़ामाबाद व दीगर मुकामात से ताल्लुक़ रखने वालों ने कसीर तादाद में शिरकत करते हुए
बड़े पैमाने पर फ्लेक्सी कट आउट का क़याम अमल में लाकर अपनी वाराहाना मोहब्बत का इजहार किया। इस मौके पर मुकामी अवाम ने रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी दिन ब दिन तरक्की करते हुए मुस्तक़बिल में मज़ीद आला ओहदे हासिल करने की ख्वाहिश की। नंदीपेट मंडल कुंठम देहात से ताल्लुक़ रखने वाले राज्य का संगम से वाबस्ता 40 मेंबरान ने तेलंगाना हुकूमत के दौर इख्तिदार में जारी तरक्याती फलाह स्कीमात से मुतासर होकर ज़िले टीआरएस सदर आर्मूर एमएलए जीवन रेड्डी के हाथों टीआरएस पार्टी में की शमूलियत इख्तियार। सीएम केसीआर गवर्नमेंट के इख्तिदार में रूबे अमल में लाए जाने वाले फलाही व तरक्याती स्कीमात को ज़िले टीआरएस सदर आर्मूर एमएलए जीवन रेड्डी की हरकियाती खिदमात से मुतासर होकर नंदीपेट मंडल कुंठम देहात से ताल्लुक़ रखने वाले राज्य का संगम से वाबस्ता 40 मेंबरान ने आर्मूर एमएलए जीवन रेड्डी के हाथों शमूलियत इख्तियार करने वालों को पार्टी का गुलाबी खंडवा पहनाकर पुरजोर इस्तकबाल किया। बातज़ा इन्होंने खिताब करते हुए कहा कि तेलंगाना हुकूमत के बरसर इख्तिदार पर आने के बाद रियासती वज़ीर आला केसीआर की कामयाब तरीन क़यादत में रूबे अमल में लाए जाने वाले मुनफरिद फलाही स्कीमात के तहत तमाम तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम को फैज़ियाब किया जा रहा है और सतह गुरबत से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम की तरक्की के लिए मुनफरिद स्कीमात को रूबे अमल में लाए जाने के बायस अवाम टीआरएस हुकूमत के शहदाई हो गए हैं। इन्होंने कहा कि समाज में शादी व ब्याह को आसान बनाने के मकसद के तहत सीएम केसीआर की जानिब से मुतारफ़ करदा कल्याण लक्ष्मी शादी मुबारक स्कीम गरीब अवाम के लिए एक तोहफ़ा होने का इजहार किया और इसी तरह से माशी तौर पर मुस्तहकिम ना होने वाले अफराद को कॉर्पोरेट तर्ज के तौर पर इलाज मुआवजा फराहम करने के मकसद के तहत सीएम केसीआर ने सीएम रिलीफ फंड स्कीम को शुरू किया है, जिसकी किसी दूसरी रियासत में नज़ीर नहीं मिलने का इजहार किया। जिले सतह पर इनेकात अमल में लाए जाने वाले इंटरमीडिएट इम्तिहानात का सुबह 9 बजे तक दोपहर 12 बजे मुनाकिद किए गए, जिसमें सुबह 8 बजे से तलबा को इम्तिहानी मराकिज़ पर दाखिले की इजाज़त दी गई। जिले सतह पर इनेकात अमल में लाए जाने वाले इंटरमीडिएट सालाना इम्तिहानात सुबह 9 तक दोपहर 12 बजे तक मुनाकिद किए जाएंगे, जिसमें सुबह 8 बजे से ही तलबा को इम्तिहानी मराकिज़ पर दाखिले की इजाज़त दी गई। 1 मिनट की ताख़ीर पर भी इम्तिहान हॉल में इजाज़त नहीं दी जाएगी। सुबह 9 बजे के बाद इम्तिहानी मराकिज़ को पहुँचने वाले तलबा को ओहदेदारों ने इजाज़त नहीं दी। तरक्याती कामों को तेज़ी के साथ मुकम्मल करने का मियां नीतू किरण ने किया इजहार। निज़ामाबाद मियां नीतू किरण शहर का दौरा करते हुए मुख्तलिफ डिवीज़नों में तकरीबन 64 लाख शहरी तरक्याती फंड से तरक्याती कामों से मुतल्लिक़ अराज़ी पर भूमि पूजन अंजाम देते हुए 4647 डिवीज़न वीकली मार्केट में 24 लाख शहरी तरक्याती फंड से सीसी कलवर्ट से वाबस्ता कामों का इफ्तिताह अमल में लाया और इसी तरह से 59वें डिवीज़न नेशनल स्कूल को जाने वाले रास्ते पर 20 लाख रुपए के फंड से बीटी रोड व सीसी कलवर्ट से मुताल्लिक़ा कामों का आगाज़ अमल में लाने के बाद डिवीज़न नंबर 32 में 20 लाख शहरी तरक्याती फंड से शुरू करने वाले तमीरी कामों का इफ्तिताह अमल में लाया। इस मौके पर मेयर ने कहा कि शहर के तमाम डिवीज़नों के हातिमी तरक्याती काम तेज़ी के साथ जारी है। शहर के एमएलए बीकाला गणेश गुप्ता शहर के तमाम डिवीज़नों के लिए फंड मुख्तस करते हुए कई तरक्याती कामों को फौरी तौर पर पाए तकमील पर पहुँचाने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में डिप्टी मेयर इदरीस खान, मुकामी कॉर्पोरेटर अकबर हुसैन, एम अरुण, सारा, आमिना रियाज, सबिया खातून, रफ़त खान, शकील अहमद, म्यूनसिपल इंजीनियर मुश्ताक अहमद, इनायत करीम व दीगर ने शिरकत की। हमारे निज़ामाबाद के विकास के दौरान हर वार्ड में कोई ना कोई हम इनाग्रेशन करते रहते हैं। जो भी वहाँ के कारपोरेटर के हिसाब से जो सीसी ड्रेन हो, सीसी रोड हो, बीटी रोड हो, वो सब हमारे एमएलए साहब देखकर हमारे को जो फंड दिया गया उसके हिसाब से हम इनाग्रेशन करते हैं। उसी हिसाब से आज 32 डिवीज़न में 20 लाख पटल प्रगति से बीटी रोड का इनाग्रेशन किया गया था। अभी 59 डिवीज़न में भी 20 लाख वर्थ से यहाँ भी एक बीटी रोड कलवर्ट का इनाग्रेशन हुआ है और अभी 46 और 47 के बीच में जो सीसी ड्रेन है उसके लिए भी 24 लाख का पूरा मिलाकर 64 लाख का आज वर्थ इनाग्रेशन किया गया है। जो विकास के दौरान बहुत कुछ काम हो रहे हैं अपने निज़ामाबाद अर्बन में। एमएलसी के कविता के साथ दिल्ली जाने वाले बीआरएस कायदीन को मोहतात रहने की बीजेपी एमपी डी अरविंद ने की ताकीद। निज़ामाबाद एमपी डी अरविंद ने दिल्ली में वाक़ रिहाइशगाह में मीडिया से खिताब करते हुए कहा कि एमएलसी के कविता के साथ दिल्ली जाने वाले बीआरएस कायदीन की तहक़ीक़ाती एजेंसियाँ तफ्तीश करेगी। इन्होंने केटीआर की जानिब से कविता को सुप्रीम कोर्ट रवाना करने के ताल्लुक़ से सवाल किया और ख़वातीन को 35% तहफ़्फ़ुज़ात के लिए जद्दोजहद करने वाली कविता पहले आप अपने ख़ानदान में रूप अमल में ला कर दिखाने का मुतालबा किया।
ఈడ వచ్చేసి సర్కసు రౌండ్ టేబుల్ ఆ టేబుల్ ఈ టేబుల్ అనుకుంటా టైం వేస్ట్. అవన్నీ చేసి మీ నాయన తోటి ఇవన్నీ చేపించి అప్పుడు వస్తే అప్పుడు నువ్వు చేసే ప్రయత్నానికి ఏమైనా అర్థం ఉంటుంది. ఇంకోటి అంటే ఏంది, ఇది జెండర్ డిస్క్రిమినేషన్ ఉండొద్దని కొట్లాట అన్నట్టే కదా. మళ్ళీ అలా కోర్టుకు ఎందుకు పోయింది? జెండర్ డిస్క్రిషన్ కోసం పోయిందా? మొగలు పోతురు కదా ఈడీ ఆఫీస్కి, మళ్ళీ స్పెషల్ ఎందుకు మరి? ఒక దిక్కేమో డిస్క్రిమినేషన్ అగేన్స్ట్ కొట్లాడుతున్నది, ఇంకో దిక్కేమో డిస్క్రిషన్ అడుగుతున్నది. మీరే చెప్పాలనే న్యాయము. అసలు ఆమెకి ఏం కావాలి? మందికో న్యాయము, మనకో న్యాయమా? यौम पैदाइश के मौके पर रियासती वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी ने सनसनीखेज फैसला लेते हुए अब से इनके पास आने वाले अफराद शाल व फूलों का गुलदस्ता ना लाकर गरीब तलबा के लिए कारामद अशिया लाने की ताकीद। हैदराबाद के मिनिस्टर क्वार्टर में वाक़ इनके रिहाइश गाह में रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी की जन्मदिन तकरीब शानदार पैमाने पर मुनक़्क़िद की गई, जिसमें अवामी नुमाइंदे व मुख्तलिफ महकमे जात से ताल्लुक़ रखने वाले अहदेदारान ने कसीर तादाद में शिरकत करते हुए शालपोशी गुलपोशी करते हुए जन्मदिन सालगिरह की पुरखुलूस मुबारकबाद पेश की। बातज़ा रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी ने खिताब करते हुए कहा कि इनकी सालगिरह के मौके पर मुबारकबाद देने के लिए आने वाले अफराद फूलों का गुलदस्ता व शाल ना लाकर गरीब तलबा के लिए कारामद अशिया जैसी किताबें, बैग, पेन लाने का इजहार किया। సన్మానాల కోసము బొకేల కోసము ఖర్చు పెడతారో నన్ను కలవటానికి వచ్చినప్పుడు, నాకు సన్మానం చేయడానికి వచ్చినప్పుడు అదే డబ్బుతో దయచేసి ఇట్లా పుస్తకాలు, పెన్సిళ్ళు, పెన్నులు కొనివ్వండి. మీ పేరు మీద నేను అవి పేద పిల్లలకు పంచి పెడతాం, అవసరం ఉన్న వాళ్ళకి ఇస్తాం, వాళ్ళకి చదువు ఉపయోగపడుతుంది. కాబట్టి రేపటి నుంచి సాంప్రదాయాన్ని కొనసాగించాల్సిందిగా నేను నా శ్రేయోభిలాషులందరికీ కూడా మనవి చేస్తా ఉన్నా, విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నా. हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा के तहत निजामाबाद अर्बन में टीपीसीसी सदर रेवंत रेड्डी ने फुटबॉल खेलते हुए किया खुशी का इजहार। जिले के मुकाम पर वाक़ खदीम कलेक्ट्रेट मैदान में युवजना कांग्रेस रियासती नायब सदर रामहती गोपी की ज़ेर निगरानी में अरगुल राजाराम मेमोरियल हाथ से हाथ जोड़ो फुटबॉल टूर्नामेंट का शानदार पैमाने पर इनेकाद अमल में लाया गया। फुटबॉल मुकाबला जात का आगाज अमल में लाने वाले टीपीसीसी चीफ रेवंत रेड्डी खुद खिलाड़ियों के हमरा फुटबॉल खेला, जिसमें टीपीसीसी वर्किंग प्रेसिडेंट महेश कुमार गौड़ व यूथ कांग्रेस नायब सदर रामहती गोपी भी इनके साथ फुटबॉल खेलते हुए खुशी का इजहार किया। इख्तिताम से खबर नजर डालते हैं आज के अहम सुर्खियों पर। जिले कामरेड्डी जुक्कल हल्का असम्बली में बड़े पैमाने पर मुनक़्क़िदा तरक्याती कामों में रियासती वज़ीर बल्दी नजनब केटीआर ने की शिरकत। मुत्तहदा अजला में पुरअमन तौर पर आगाज अमल में लाए गए इंटरमीडिएट इम्तिहानात में 1 मिनट की ताख़ीर पर तलबा को इम्तिहानी मराकिज़ में दाखिले की इजाज़त नहीं दी गई। निज़ामाबाद के मुख्तलिफ सेंटर का कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने लिया जायजा। यौम पैदाइश के मौके पर रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी ने सनसनीखेज फैसला लेते हुए अब से इनके पास आने वाले अफराद शाल व फूलों का गुलदस्ता ना लाकर गरीब तलबा के लिए कारामद अशिया को लाने की ताकीद। मरकज की बीजेपी हुकूमत हर महाज पर नाकाम, वो खवातीन तहफ़्फ़ुज़ात बिल की यकीनी तौर पर मंजूरी अमल में लाई जाए। दिल्ली के खवातीन ग्रुप से राउंड टेबल इजलास से मिलती के कविता का खिताब। सीएम केसीआर व आलमर एमएलए जीवन रेड्डी की जानिब से शुरू करदा तरक्याती फलाह स्कीमात से मुतासर होने वालों ने बीआरएस पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। हैदराबाद के मिनिस्टर क्वार्टर में एमएलए जीवन रेड्डी की मौजूदगी में चिकली देहात से ताल्लुक़ रखने वाले कांग्रेस कायदीन ने बीआरएस पार्टी में की शमूलियत इख्तियार। एमएलसी के कविता के साथ दिल्ली जाने वाले बीआरएस कायदीन को मोहतात रहने का दिल्ली मीडिया से एमपी डीआरपी ने दिया इंतबाह।
12% तहफ़्फ़ुज़ात व मुस्लिम मसाइल को रियासती हुकूमत की जानिब से नज़रअंदाज किया जा रहा है। अखलाकी तबके के साथ खिलवाड़। शहर के लिमरा बैंकेट हॉल में जारी JC राउंड टेबल से मुअज़्ज़िज़ीन का खिताब। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाअल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।